Hello everyone, I welcome you all to Manu Law Classes Current Affair Analysis. In this particular video, we will discuss July 17, The Hindu Delhi edition newspaper. So our main topic of concern for today is NSO, Kuno National Park or Kuno cheetahs. Apart from that, we will also discuss about gibbons, Indian big conglomerate, which is discussed in the editorial section, India-France relationship, it is again coming in the editorial section, about Rahul Gandhi conviction and the case of defamation, about cloud storage, and also about collegium system and nomadic elephant exercise and much more. So let's start our discussion with the very first topic, that is about NSO. So here we will discuss about NSO first and what are the important implications or what are the important major upcomings which will be reformed in NSO. So first we will discuss in detail about NSO, that what is NSO. Talking about NSO, it is basically coming under Ministry of Statistics and Program Implementation, or abbreviated as MOSPI. Okay, so it is a ministry of Union Ministry, and also it is concerned with the coverage and the quality aspect of the statistics which is being involved or which is being released. Now the survey conducted by the ministry is based on scientific sampling. Apart from that, this particular ministry, it has two wings. First one is related to statistics and other one is related to program implementation, as the name suggests. Now, the statistic wings is also called the NSO or the National Statistical Office, which basically consists of two parts, that is coming under, that is CSO or the Central Statistics Office, and the NSSO, okay, that is the National Sample Survey Office. These two branches were merged in the year of 2019. On 23rd May 2019, these two branches were merged and they were formed NSO. Okay, so this is about the briefing. What is NSO? What are the ministry involved in this? And what is the main functioning of NSO? Now moving further toward our news, that what is it talking about? So basically, Union government has constituted a new interim internal oversight mechanism for official data, and it will revamp the Standing Committee on Economic Statistics, which was set up in 2019. So here basically this particular committee or the Standing Committee on Economic Statistics, it will now be replaced by Standing Committee on Statistics. Okay, so just remember, this is an important information, and it will be having a much broader mandate. Like, it will not only review the economics part, it will also review the other frameworks and also conduct the surveys which are under the aegis of the NSO. Now, Pranab Sen, he is the former chairman of the NSC, National Statistical Commission, and he has been named to chair this particular new panel. Now, what this new Standing Committee on Statistics will do, it will basically review framework and also analyze the economic sampling, or what is the result of that sampling. So this panel will replace the Standing Committee on Economic Statistics, which was set up in 2019, and it was found that it is not that it has a very narrow scope, and to increase the scope, this particular committee is being replaced. Now, its term of reference, it will include the finalization of the survey result, better use of the administrative data, and apart from survey design improvement, this particular committee will also identify the data gaps and the strategies to plug them in and what can be the measure. So it will also deal with the problem, it will also deal with the sampling, and along with that, it will also provide a solution. Now, the term of this particular committee or the earlier committee, that is Standing Committee on Economic Statistics, it will come to an end anytime, and also now the data and the advice of the ministry technical aspect for all the surveys, it will be given by the new committee. So this is an important detail. Just remember all these important points which I talked, and also about
NSO, what is NSO and what are the ministry involved in NSO. Okay, so these are the important points. Apart from that, this particular new committee will enhance the term of reference and it will have more coverage and it will have 10 official members and the 4 non-official members who are eminent academics. So there will be total 10 official members and also 4 unofficial members जिनके पास अच्छी academic information होगी और ये जो आपका strength है ये 16 तक जा सकता है और वैसे आपका 14 तो रहेगा ही। तो यहाँ पे इसका strength जो होगा वो 16 तक extend कर सकता है but दो 14 is the number which has been suggested. Okay? और इंडिया स्टैटिस्टिकल मशीनरी जो है ये आपका मेंबर होगा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का, जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसमें आपके चेयरपर्सन भी होते हैं और यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है बेसिकली बिबेक देबरॉय के थ्रू। तो यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि Indian Statistical Service has little experience in survey design. So that's why he is criticizing the system, but though it has been finalized, so it will soon replace this particular old committee. Now there is a little bit of information important from your examination point of view or one-liner aspects. There will be an opposition meet in Bangalore today. So just remember where this opposition meet is going on. Okay. Moving further toward our next important article, that is from the G20 summit, or here basically India is pushing to raise the MNC tech share. For example, there are a lot of companies like Google and all these Microsoft, these are the big companies. They are working in India and they are giving low taxes as said by the, as argued by the government, and they are basically even paying low taxes in those countries where the tax bracket is low. So basically the G20 partners, they are pushing, or India is basically pushing this proposal to raise the share of the taxes of the multinational companies to pay the countries where they earn excess profit and where they pay less tax. So this was a proposal given by India. So you have to understand the basic aspect about G20, how many members are there, when it was formed. So all these things you have to remember. Just remember all these things. Okay. Moving further toward our next important article, that is dealing with the Kuno cheetah. So here basically there is a report that one more cheetah or two more cheetah has been died in the Kuno National Park in Madhya Pradesh, and to review the condition or to review the medical condition of these cheetah, there has been a committee, expert advisory committee, which is being formed under the implementation of Project Cheetah, and they basically recommended that all these cheetahs should undergo for the physical and the medical review. So basically हुआ क्या है, problem is कि ये जो cheetahs आए हैं इनके एक गले में एक अलग टाइप का रेडियो कॉलर लगाया गया है और बेसिकली उससे इनको इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि उससे इनको इन्फेक्शन हो रहा है, तो जिसके चलते मैगट्स इनके गले में डेवलप हो रहे हैं और जिसके चलते ये डाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस रेडियो कॉलर का क्या इन्फ्लुएंस है इनके डेथ से या क्या ये रिलेटेड है इनके डेथ से, इसीलिए इस मेडिकल रिव्यू कमेटी को स्टैब्लिश किया गया है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज। वी नो चीतास हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कूनो नेशनल पार्क, फर्स्ट फ्रॉम नामीबिया एंड देन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। Moving further toward our next important article, that is coming in from the state government. As we know that in Delhi there is a lot of flooding and the government has announced that it will provide 10,000 for each affected family who are facing basically the flood damages. So basically they will get 10,000 rupees. Every affected family will get this. Now moving on towards our next important article, that is coming in from the state section, and here basically our important article is dealing with the India's only ape, that is gibbon. Okay, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यही है कि गिबॉन इज द इंडियाज ओनली एप। फुल ऑफ गिबॉन नाम है और ये बेसिकली आपके नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस होता है ग्लोबल गिबॉन नेटवर्क का,
और ये आपका हुआ है। और यहाँ पे इंडिया के जो ओनली एप गिबॉन्स हैं उनके कंजर्वेशन स्टेटस के ऊपर बेसिकली यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है कि कितने वो सेफ हैं, क्या उनका कंजर्वेशन स्टेटस है। और गिबॉन्स की अगर हम बात करें तो गिबॉन्स आपके स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट होते हैं, जितने भी एप्स प्रेजेंट हैं उसमें सबसे छोटे और सबसे फास्टेस्ट होते हैं ये। और ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया इन इंडिया, इफ वी से इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे ये लोग रिजाइड करते हैं, मतलब रहते हैं। हुलॉक गिबॉन इज यूनिक टू इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड इट इज one of the 20 species of the gibbon on earth and India's only species. Okay, so all these points are important. This conference is important, and here basically the global gibbon network, it was held in first meeting in the Haikou in China's Hainan province July 7 to 9 में। और यहाँ पे जो आपके गिबॉन की पॉपुलेशन है उसके बारे में बात किया गया था और ये कहा गया है कि उनका पॉपुलेशन ड्रामेटिकली डिक्रीज हो रहा है एंड द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज डिफॉरेस्टेशन। ओके, उनका जो आपका पेड़ है जहाँ पे लोग रहते हैं उसको काटा जा रहा है एंड दैट इज द मेन रीजन कि यहाँ पे ये गिबॉन का जो आपका स्पेशीज का नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है। GGN जो है ये आपका मतलब ग्लोबल गिबॉन नेटवर्क, दिस वाज फाउंडेड विद अ विजन टू सेफगार्ड एंड कंजर्व अ की एलिमेंट ऑफ एशियाज यूनिक नेचुरल हेरिटेज, द सिंगिंग गिबॉन एंड देयर हैबिटेट बाय प्रमोटिंग पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन पॉलिसीज, लेजिस्लेशन एंड एक्शंस। मतलब यहाँ पे इस नेटवर्क को इसीलिए फॉर्म किया गया था ताकि जो गिबॉन के बारे में उसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है, उसका जो हैबिटेट है, इन सबको कंजर्व किया जाए। कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज गिबॉन एक जगह तो मिल नहीं रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सारे कंट्रीज एक साथ आएंगे और गिबॉन के ऊपर बात करेंगे और उनके जो हैबिटेट है उसके कंजर्वेशन के ऊपर बात करेंगे और यहाँ पे साथ में क्या उनके प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं गिबॉन उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। ओके, so this is an important article regarding gibbon. Moving further toward our next important article that is coming in from the state section again, and here basically one more species have been found, that is foreign cicada, that is commonly found in the several part of the South India, have assumed an Indian identity. So just remember the name, that is insect species have now been named Purana chivada. Okay, so Malayalam name is chivdu and it has been basically mistaken to Purana tigrina, which is a species which was first described in the Malaysia in 1850. So this particular name is important क्योंकि ये अभी फाइंड हुआ है और इसको बेसिकली ये फॉरेन टाइप का है, फॉरेन सिकाडा है और इंडिया के साउथ पार्ट में मिला है, तो इसीलिए इसकी डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट रिमेंबर द नेम, that's it. Moving further toward our important aspect from the editorial section. Here basically there is an article from India's conglomerate are getting too big for comfort. As we know, there has been a controversy of the Adani Group. कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने बहुत ज्यादा लोन्स एंड ऑल ले लिए हैं जिसके चलते वो बहुत ज्यादा डेट में है और स्टिल दे आर बेसिकली वर्किंग। एंड हिंडलबर्ग आपका ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हिंडनबर्ग रिसर्च, और यहाँ पे ये इन्हीं इकोनॉमिक्स के मैटर को डील करता है। तो बेसिकली द हिंडनबर्ग research, they seems to stop the advance of the Indian big businesses as Adani Group is continuing its acquisition even if at a slower pace, has been able to persuade financial market and lend it more money, notwithstanding assessment that is over dependent on debt. Basically ये डेट बहुत ज्यादा ले चुका है, सो आइडियली ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि इसको और ज्यादा लोन्स नहीं मिलने चाहिए, बट दे आर गिविंग लोन। जो फाइनेंशियल मार्केट है हमारे वो लोन दे रहे हैं और ये अडानी ग्रुप जो है वो आपका एक्विजिशन बार बार कर रहा है और इसके अगेंस्ट मतलब इस पूरे सिनेरियो को हिंडनबर्ग रिसर्च ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है और इसके ऊपर पूरी स्टडी की है। सो हियर बेसिकली द होल आर्टिकल इज डीलिंग विद वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट जो आपके ये कैपिटलिस्ट हैं या आपके ये जो बड़े एग्लोमरेट है, कॉन्ग्लोमरेट है, ये कैसे पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होल थिंग इज अबाउट दैट, दिस होल आर्टिकल इज अबाउट दैट हाउ दिस particular important capitalist class is affecting our democracy or affecting our politics and how politics should not get influenced by these class. So basically हमें पता है कि अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो पॉलिटिक्स में मनी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब मनी आएगा कहाँ से? मनी आता है इन्हीं कैपिटलिस्ट क्लास से। दे फंड द
पार्टीज, एंड देन जब पार्टी सिलेक्ट हो जाती है एज अ गवर्नमेंट तो वो इनको फेवर्स प्रोवाइड करती है. सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया और वी कैन से अ रफ आइडिया अबाउट इट. तो यहाँ पे बेसिकली ये ट्रेंड एनालाइज किया गया है कि पॉलिटिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्टेट एंड बिग बिजनेसेस शुड बी देयर, एंड न्यू लिबरलिज्म में ये आइडिया आपका बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया है कि अगर कोई बिग बिजनेस है तो उसके बीच में और पॉलिटिक्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैज बीन आल्सो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच द ऑथर इज हाइलाइटिंग, दैट द प्रोपगेशन ऑफ व्यू दैट द स्टेट मस्ट हेल्प स्ट्रेंथन डोमेस्टिक बिग बिजनेस टू नॉट जस्ट होल्ड इट्स ओन अगेंस्ट द जाइंट ग्लोबल कॉम्पिटिटर बट टू स्टेप बियॉन्ड इंडियन शोर्स. लाइक सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया में है, बाहर जाके भी आपको स्टैब्लिश करना है, बिग बिजनेसेस स्टैब्लिश करने हैं. स्टेट पॉलिसी, डिप्लोमेसी, पब्लिक रिसोर्सेज ये सबको चैनलाइज करना चाहिए थ्रू द पब्लिक बैंक, एंड ये आपका इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेंगे इस पर्पस के लिए. सो बेसिकली द ऑथर इज सेइंग दैट one point here is state should maintain distance from the big businesses. Second point is that ये जो big businesses हैं इनको अपना जो रीच है वो बाहर भी उतना ही एक्सपेंड करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट गूगल एंड ऑल दीज कंपनीज, दे हैव एक्सपेंडेड देयर रीच, सो बेसिकली दे शुड डू ऑल दीज थिंग. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के लिए के अगेंस्ट, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात की जा रही है. जो आपकी कुछ कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस है, अडानी है, टाटा बिरला है, इनके पास बहुत ज्यादा मनी है और बाकी कंपनीज के पास या इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा है. इनके पास तो मैक्सिमम पैसा है, बाकियों के पास उतना पैसा नहीं है और इसीलिए ये बेसिकली पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं. सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल. मूविंग फर्दर टुवर्ड इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप, हियर बेसिकली एज वी नो अभी ही बेसिले परेड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हैं, तो वहां पे एक और इम्पोर्टेंट इवेंट एम्बार्क किया है, दैट इज द 25 इयर्स ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. और यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे डिफेंस डील साइन हुए हैं, साथ में collaborations की भी बात की गई है. So here basically the author is saying that Mr. Modi visit just before Mr. Macron is in Delhi for the G20 summit was a special one, and he is the second prime minister to be invited for the Basile Day parade. पहले कौन थे? मनमोहन सिंह थे. He was invited in 2009 and after that Prime Minister Narendra Modi, he has been invited for the Basile Day parade. And here also there has been a term point, Horizon to 2047. This is basically a roadmap for the next 25 years to bring more collaboration between the Indian and the France government, and it will include cooperation between the defense, space, nuclear energy, climate change, green transition, as well as education and people to people ties. So just remember that who was earlier invited, what was the number. नरेंद्र मोदी जी को कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है जिनको आपका इनवाइट किया गया है, उसके अलावा होराइजन 2047 क्या है. These are the important aspects. Okay, now there has also a deal on the Rafale fighter jets, Rafale M fighter jets for the Indian Navy, and also about the 3 more Scorpion class submarine, जो आपका ऑलरेडी ये सारी डील्स हो चुकी हैं फाइनलाइज. तो ये सब हमारी डील्स होंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में फ्रांस और इंडिया की स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को देखें तो हमारा ये मानना है कि जो आपकी फ्रांस गवर्नमेंट है वो हमेशा इंडिया की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करती है, चाहे कभी भी कोई भी टाइम हो. जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट वाज क्रिटिसाइजिंग इंडिया, ऑल द वेस्ट वाज क्रिटिसाइजिंग इंडिया कि वो रशिया के अगेंस्ट नहीं जा रहा है फॉर द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, बट फ्रांस नेवर क्रिटिसाइज्ड इंडिया, it took a normal stance. So this shows that France is respecting India's sovereignty. Apart from that, जब हमने अपना न्यूक्लियर एक्सरसाइज किया था in the year of 1974, which was codenamed as Smiling Buddha और Operation Shakti 1998, तो इस टाइम पे भी हमारा जो फ्रांस था उसने ऐसा नहीं किया कि सैंक्शन इम्पोज किया, बिकॉज वी नो यूएसए ने सैंक्शन इम्पोज कर दिया था इंडिया पे, या बहुत सारी वेस्टर्न कंट्री क्रिटिसाइज कर रही थी इंडिया को फॉर देयर न्यूक्लियर टेस्ट. बट the case with France was different. France neither criticized nor imposed any sanction, and even it helped us
with the uranium supplies to power the Tarapur reactor. Okay, so now you have to comment it out in comment box that where is Tarapur nuclear reactor located. Okay, talking about Mr. Modi visit, it was at the time jab we all know that there is a conflict in Manipur, and here basically European Parliament, they are adopting a resolution criticizing the government policies for the violence in Manipur, but at the same time France didn't said anything, and also फ्रांस हमारी इस इशू को इंटरनल इशू की तरह ट्रीट कर रहा है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि फ्रांस हमेशा सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को आपका सपोर्ट करता है और इसको रिस्पेक्ट देता है, एंड दिस इज द मेन रीजन why India France relationship are so good, and it will be also good in the upcoming time. Moving further toward a next important article about Rahul Gandhi conviction. इस केस को हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है. वी ऑल नो दैट राहुल गांधी हैज बीन बुक्ड अंडर द क्रिमिनल डिफेमेशन केस, और यहाँ पे इसके अगेंस्ट में बेसिकली आर्टिकल आया है, इसके फेवर में आर्टिकल आया है, पूरे चीज को एनालाइज करने के लिए आर्टिकल आया है. सो हियर द हाई कोर्ट वाज डिसाइडिंग ऑन एन एप्लीकेशन टू सस्पेंड द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन अगेंस्ट मिस्टर गांधी, बट द कोर्ट अल्टीमेटली डिनाइड रिलीफ टू द petitioner, relying on the principle that the stay on the conviction is not a rule but an exception to be resorted to in the rare cases. So this was the stand of High Court कि यहाँ पे उन्होंने stay नहीं दिया और बोला कि stay सिर्फ और सिर्फ rare cases में या exceptions में मिलता है. So there are earlier judgments on defamation. What are these? Just remember the judgments. And here Sahib Singh Mehra versus State of Uttar Pradesh 1965. It relied on the criteria of identifiability and definitiveness of the determinant to fall in a category of collection of persons. For example, यहाँ पे जो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है, दैट इज विद रिगार्ड टू व्हाई ऑल थीव्स हैव मोदी एज सरनेम. तो इसके अगेंस्ट उनके ऊपर सेक्शन 499 ऑफ द सीआरपीसी बुक किया गया है और क्रिमिनल डिफेमेशन का केस उन पे चार्ज किया गया है. सो हियर बेसिकली नाउ वी हैव टू सी जो आपका हायर कोर्ट है वो आपका क्या डिसीजन देता है कि क्या ये पूरा जो मोदी सरनेम वाला चीज जो है, ये पार्ट जो है, ये आपका ग्रुप को रिकॉग्नाइज कर रहा है या आपका ये सिंगल आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वेदर इट इज एसोसिएटेड विद अ कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन एज सच. सो वी हैव टू सी दैट व्हाट द अदर कोर्ट्स और द एपेक्स कोर्ट इज डिसाइडिंग ऑन इट. नाउ it we will see in later cases that what the apex court will decide whether the Modi as an identifiable or a definite class in order to be called as a group of person, क्योंकि यहाँ पे ये जो section 499 of CRPC लगा है इन पे, that is basically talking about a defamatory as an imputation concerning a company or association or a collection of person as such. क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मोदी सरनेम बोला है, तो इसीलिए कलेक्शन ऑफ पर्सन के ऊपर यहाँ पे मुद्दा उठा है और यहाँ पे हाई कोर्ट ने इन्हें इसके लिए पनिश किया है. सो हियर बेसिकली नाउ वी विल सी एपेक्स कोर्ट आपका क्या डिसीजन लेता है. ओके, मूविंग फर्दर टुवर्ड आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज टॉकिंग अबाउट the cloud storage and the cloud environment, how it need to be protected and how it is basically being breached. So here basically first we will understand the term that what is cloud storage. So cloud storage is a method through which digital data including the files, business data, videos or images, they are stored on server in off-site location, and these server may be maintained by the companies themselves or by the third-party providers responsible for hosting, managing or securing the stored data, and these server can be accessed either by the public or through the private internet connection. So here basically what is the case? सिंपल शब्दों में अगर हम समझे क्लाउड स्टोरेज क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरा कुछ इंफॉर्मेशन है, मेरा कुछ डेटा है, मेरे कोई सर्टिफिकेट है, मेरे इमेजेस हैं, मेरी वीडियोस हैं, वो मैंने एक जगह जैसे मैंने सपोज करिए कहीं सेव कर दिया इन एनी क्लाउड स्टोरेज एरिया, आई सेव्ड इट और लेटर ऑन मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ. अब मुझे बार बार फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोन में सेव करूँ तो वो डिलीट हो सकता है, देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग डिलीटेड. लेकिन अगर मैं किसी क्लाउड स्टोरेज वाली डिवाइस में या कोई क्लाउड स्टोरेज वाले एप्लीकेशन में सेव कर दूं, क्लाउड स्टोरेज पे सेव कर दूं, तो वहां से डिलीट होने के चांस कम होंगे और वो एक ऐसी जगह पे सिक्योर्ड होगा जहां से मैं बाद में उससे एक्सेस ले सकता. फॉर एग्जांपल कई बार हम गूगल ड्राइव पे चीजों को सेव करके रख देते हैं और बाद में हम उससे एक्सेस लेते हैं और उसको देख सकते हैं. तो हियर बेसिकली क्लाउड स्टोरेज इज वर्किंग लाइक दिस.
and the companies use these cloud storage to store, access or maintain data so that they do not need to invest in operating and maintaining data centers. Okay, तो यहाँ पे cloud storage का इसीलिए यूज किया जाता है. नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इफ यहाँ पे मेरा जो सारा फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव में ही मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स रख रखे हैं, मेरी सारी इंफॉर्मेशन, मेरी सारी फोटोज वीडियो सब कुछ गूगल ड्राइव पे सेव है. व्हाट इफ कल को मेरा ये जो गूगल ड्राइव का इंफॉर्मेशन है ये लीक हो जाए, तो मेरा सारा पर्सनल डेटा लीक हो जाएगा. सो दिस इज द पॉइंट कि यहाँ पे ब्रीच बहुत ज्यादा हो रहा है या आपका जो पर्सनल डेटा है वो बहुत ज्यादा पब्लिक हो रहा है या ब्रीच हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल जून के केस में एक बॉट था जो आपका टेलीग्राम पे था, उसने पर्सनल डेटा जो था इंडियन सिटीजन का जो कि आपके कोविन पोर्टल पे रजिस्टर्ड थे उसको दिखा दिया. तो यहाँ पे जब बात आई, ये बात हाईलाइट हुई, तो कंट्री की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने डिनाई किया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कोई डेटा लीक नहीं है, और उन्होंने कहा कि इंडिया का जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इट इज रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द पोर्टल. सो बेसिकली यहाँ पे हमें दिखता है, हाईलाइट होता है कि कैसे हमारा जो पर्सनल डेटा है वेदर आधार रिलेटेड, अगर आधार रिलेटेड डेटा भी लीक हो जाए तो जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं दे आर रिलेटेड विद द आधार. अगर मेरे पास मेरा आधार कार्ड है उससे मेरा बैंक अकाउंट लिंक्ड है, मैं सिम इशू करवा सकती हूँ. तो अगर मेरा आधार कार्ड का इंफॉर्मेशन ही लीक हो जाएगा तो मेरे सारे फाइनेंशियल और जितने भी पर्सनल सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज हैं ये सब लीक हो जाएंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो मेरी तो कोई प्राइवेसी ही नहीं रहेगी. दैट इज द इम्पोर्टेंट कंसर्न. So here basically the risk associated with this cloud storage is that the deployment or incompatible legacy IT system and a third party data storage architecture. Basically जैसे यहाँ पे कहा गया कि कंपनीज जो होती हैं वो क्लाउड स्टोरेज को यूज करती हैं ताकि उनको अपना कोई भी डेटा सेंटर मेंटेन ना करना पड़े, और यहाँ पे इसी डेटा सेंटर को मेंटेन ना करने के लिए हम एक थर्ड पार्टी को ये सारा एक्सेस दे रहे हैं. अब जब ये थर्ड पार्टी के पास एक्सेस जाएगा तो उससे क्या होता है, आईटी सिस्टम या आईटी सिक्योरिटी जो होता है वो आपका डैमेज हो जाता है. तो इससे वीक ऑथेंटिकेशन प्रैक्टिसेस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल सेट माई जीमेल पासवर्ड एज माई डेट ऑफ बर्थ और समथिंग लाइक दैट, तो इससे क्या होगा, ये सारी चीजें जो है मेरी इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगी. तो इसीलिए ऐसे पासवर्ड्स कभी सेट नहीं करने चाहिए, और ये गेसेबल पासवर्ड जो होते हैं इससे अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल जो होते हैं उनको सेंसिटिव डेटा का हमारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है. तो इसीलिए जो आपका डेटा क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होता है वो आपका इस सारे एक्सपोजर जैसे कि इनसिक्योर एपीआई, पुअरली डिजाइन्ड, inadequate security control, internal threat due to the human error और inadequate encryption during the transfer or the storage, इससे आपका लिंक होता है और इसी के चलते आपका जो डेटा है वो ब्रीच होता है. नाउ बेसिकली जो आपका क्लाउड सिक्योरिटी है इट मे अपीयर सिमिलर टू द आईटी सिक्योरिटी, लेकिन डिफरेंस होता है इसके आर्किटेक्चर और यहाँ से आपका डिफरेंट स्ट्रेटेजी प्लान करनी है. फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ सपोर्ट और अपग्रेड्स लीगेसी आईटी सिक्योरिटी में नोन एज द वल्नरेबिलिटी, लेकिन ये जो वल्नरेबिलिटी होती है यही आपके हैकर्स जो होते हैं वो टारगेट करते हैं और इन्हीं गैप्स पे बेसिकली आपका जो क्लाउड स्टोरेज से डेटा है वो ले लिया जाता है विदाउट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एनक्रिप्टेड भी है चीज सब तो भी वो आपका हैक हो जाएगा. सो ये आपका इशू है. नाउ शुड डेटा ब्रीचेस बी ट्रीटेड ऑन पार विद द डेटा एक्सपोजर. डेटा ब्रीचेस और डेटा एक्सपोजर जो है ये आपके क्लाउड में ये आपके आइडेंटिकल होते हैं. डेटा ब्रीच में कॉन्फिडेंशियल या प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपके किसी अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल को जाता है. वहीं अगर बात करें डेटा एक्सपोजर की तो यहाँ पे वो अनइंटेंशनल डिस्क्लोजर होता है या एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर हो जाता है किसी डेटा का. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन एरर के चलते देयर वाज अ न्यूज कि आधार का डेटा सामने आ गया था एक फेमस पर्सनालिटी का, तो यहाँ पे बेसिकली ये डेटा एक्सपोजर था, गलती से ये डिस्क्लोज हो गया. लेकिन डेटा ब्रीच क्या हो गया कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल या प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास चला जाए. सो दैट इज डेटा ब्रीच एंड दिस इज डेटा एक्सपोजर. रिमेंबर द डेफिनेशन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ व्हाट कॉजेज दिस सिस्टम मिसकॉन्फ़िगरेशन. बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड की, मैंने गूगल प्ले स्टोर से ना जाके कहीं और से
कोई चीज डाउनलोड किया, कोई ऐप डाउनलोड किया, तो हो सकता है उसमें कोई मैलवेयर हो या हो सकता है उसमें कोई वायरस हो जो मेरे पूरे सिस्टम को करप्ट कर दे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अपने जो पूरे सिस्टम है, चाहे वो मेरा फाइनेंशियल ऐप है या मेरा कुछ भी है, मेरा पर्सनल डेटा है, उस सबको मैंने प्रोन बना दिया टू ऑल दीज प्रॉब्लम और टू ऑल दीज हैक। तो बेसिकली क्लाउड स्टोरेज जो है इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल सिस्टम, सर्वर्स और सॉफ्टवेयर वर्किंग्स। अब यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है उस कंपनी के द्वारा कि इंडिविजुअल का डेटा जहाँ पे भी स्टोर है वो उसको मिल जाए जब कभी भी उसको रिक्वायरमेंट हो। लेकिन अगर हम ऐसी कोई चीज को यूज कर लेते हैं, ऐसा कोई मैलवेयर हमारे सिस्टम में आ जाता है, तो उसके चलते हमारा जो डेटा होता है वो ब्रीच हो जाता है और इसी को हम कहते हैं मिसकॉन्फ़िगरेशन। मिसकॉन्फ़िगरेशन मीन एक्सपोजर ऑफ द यूजर डेटा, मेकिंग इट एक्सेसिबल टू द अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल एंड कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नाउ देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन एंड मेक द डेटा मोर सेफर। तो उसके लिए गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन और सून there will be obviously a protocol which will come and that will protect us from all these kind of hacking or all these kind of problems. Okay, so this was the main issue. Just remember the important point जो मैंने अभी यहाँ पे बताया, what is cloud storage, what is data breach, what is data exposure and what is misconfiguration. Okay, I hope कि आपको ये पूरा article समझ में आ गया. Moving further toward our next important article, that is talking about the collegium system. तो यहाँ पे बेसिकली हमें पता है अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जजेस का, और यहाँ पे आपका एक उज्जवल भुयान, ही इज द जस्टिस हु हैज बीन अपॉइंटेड, एंड आल्सो जस्टिस भट्टी, ही हैज बीन अपॉइंटेड। तो इन दोनों जजेस का जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें कोलिजियम सिस्टम जो है दैट इज कमिंग इन न्यू। सो नाउ वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द क्वालिफिकेशन and the procedure of the appointment of judges, then we will discuss about the collegium system. So first talking about the qualification and appointment of Supreme Court judge. Okay, so we know under article 124 subclause C of the constitution, a person can be appointed as the Supreme Court judge if he or she, first of all, what are the conditions? सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके अलावा ही मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, ही मस्ट हैव सर्व्ड एट लीस्ट फॉर 5 years और फॉर द 2 courts in such succession. Okay, and next point is about if he has not served in any high court judge, so if he has been working as an advocate of any high court for at least 10 years or 2 or more such courts in succession. So these are the 3 criteria which is required. Apart from that, there is one more criteria. If the president find it that that person is a distinguished jurist, तो इस केस में प्रेसिडेंट उस इंसान को अपॉइंट कर सकते हैं इफ द प्रेसिडेंट फील इट लाइक दैट कि ये आपके डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं और इनको हमें अपॉइंट करना चाहिए और ये इंडिया के सिटीजन हैं। तो इस केस में आपका 124 सब क्लॉज 3 में आपका सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं। अब यहाँ पे अपॉइंट कौन करते हैं? जजेस जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करेंगे? He is appointed by President of India, and the President consult with the judges of the Supreme Court and the High Court to make such basically informed appointment. Now, what is collegium system? If we talk about collegium system, so collegium system is a area where judges are appointed, collegium system for judicial appointment. Now, the judge of the higher judiciary, they are appointed through this particular collegium system. अब इस collegium system में कौन-कौन होते हैं? इसमें आपके CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में आपके 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, collegium system में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो बेसिकली डिसाइड करते हैं किस मैटर्स पे, अपॉइंटमेंट पे, उसके अलावा ट्रांसफर्स पे और एलिवेशन या प्रमोशंस पे। ओके, नाउ जो कोलिजियम वर्ड है इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और ये आपका जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से आया है।
So this is the basic idea about what is a collegium system and how it works. Now we will discuss what is the news. So here basically D.Y. Chandrachud, he is the Chief Justice of India, he said that all these appointment of the process of judges to the Constitutional Court, it is based on the merit and the seniority. और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक जजमेंट इवैल्यूएशन कमिटी बिठाई जाती है बिफोर ऑल दीज अपॉइंटमेंट, और ये बेसिकली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो किस तरीके के जजमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन सबको देखा जाता है और उसके बेसिस पे अपॉइंटमेंट होता है. So everything is based on merit and seniority, not on any other thing, and everything is transparent. So this is an important news you should know about the collegium system. Moving further toward our next important article, that is coming in from news section here. Basically the lightning, it is not a natural disaster, we all know. So what is coming under natural disaster? सबसे पहले ये लिख लीजिए, cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslip, avalanche, cloudburst, pest attack, frost and cold wave. ये आपका SDRF ने बोला है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, इसके अंडर ये सारे आपके आते हैं natural disaster. Now lightning is a very major problem. Lightning specifically in areas of Bihar, क्योंकि यहाँ पे जो एक स्टडी की गई थी उसमें कहा गया कि जो लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार, इन सारे स्टेट में बहुत ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा डेथ जो होती है वो ऐसा कहा गया है कि बिहार में सबसे ज्यादा डेथ हुई है लाइटनिंग के चलते. तो यहाँ पे इन सारे स्टेट में, बिहार में खास करके लाइटनिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. बट एज इट इज नॉट कवर्ड अंडर द डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, तो यहाँ पे एसडीआरएफ जो है उसके फंड से कोई भी पैसा नहीं मिलता. जो भी आपका साइक्लोन या ये सारी जो आपकी नेचुरल डिजास्टर जो रिकॉग्नाइज करता है एसडीआरएफ, वो बोलता है कि अगर आपकी लाइटनिंग में डेथ हुई है तो इट इज नॉट एज अ नेचुरल डिजास्टर, और इसके चलते जो विक्टिम्स होते हैं उनको कंपनसेशन भी नहीं मिलता एसडीआरएफ से. अगर एसडीआरएफ की बात करें तो सेंटर जो है 75% कंट्रीब्यूशन देती है, बाकी परसेंट जो होता है वो स्टेट देता है. तो यहाँ पे सब कोई बात कर रहे हैं जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, स्पेसिफिकली बिहार, झारखंड एंड ऑल दीज स्टेट्स, दे आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कि जो आपका लाइटनिंग का इशू है इसको भी हमें नेचुरल डिजास्टर में कंसीडर करना चाहिए क्योंकि इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है लाइटनिंग के चलते. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज अबाउट द nomadic elephant 23 exercise. Here basically nomadic elephant ये जो है आपका एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होता है जो आपका मंगोलिया और इंडियन सोल्जर्स के बीच में होता है. ओके, सो यहाँ पे इंडिया ने अपने ट्रूप्स को 15th एडिशन हो रहा है ये इस मिलिट्री एक्सरसाइज का, कहाँ पे हो रहा है, उलान बटार में, और यहाँ पे ये जुलाई 17 से 31 तक कंडक्ट किया जाएगा. और यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस या इंटरऑपरेबिलिटी है इसके ट्रांसफर की बात की जाएगी और यहाँ पे इसके थ्रू इस मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाएगा. तो इंडिया ने अपने 43 पर्सनल्स को भेजा है उलम बटार में संडे को फ्रॉम एयरफोर्स C-17 एयरक्राफ्ट टू टेक पार्ट इन द एक्सरसाइज नेम्ड एज नोमैडिक एलिफेंट. तो आपको यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि इंडिया और मंगोलिया का जो डिफेंस एक्सरसाइज होता है ये आपका क्या होता है, नोमैडिक एलिफेंट. ओके, यहाँ पे पॉजिटिव मिलिट्री रिलेशन बनाने के लिए, फ्रेंडशिप बनाने के लिए दो आर्मीज के बीच में, इसलिए यहाँ पे बेसिकली एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है. प्राइमरी थीम की बात करें तो ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की बात करता है माउंटेनियस टेरेन में अंडर द यूएन मैंडेट. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ one more news coming in from the space sector, PSLV C-56, it will lift off 7 satellite and here basically it is a commercial mission of PSLV जहां पे आपके DSSAR दैट इज द सिंथेटिक अपर्चर रडार सिंगापुर का, इसके अलावा आर्केड, विलॉक्स AM, ORB स्ट्राइडर, ये सारे आपके सैटेलाइट PSLV C-56 कैरी करेगा. और साथ में नैनो सैटेलाइट्स weighing less than 10 kg, दिस इंक्लूड गैलेशिया 2, E2, न्यूलॉन and VSS. ये सब आपका नैनो सैटेलाइट which the PSLV C-56 will carry as said by the Vikram Sarabhai Space Center, VSSC is Vikram Sarabhai Space Center, and these satellites will be placed in the low Earth orbit. Okay,
This was an important news. Now moving on toward our next important news, that is about the comprehensive and progressive agreement for the Trans-Pacific Partnership. Here basically UK has signed this Trans-Pacific trading bloc, and here this is a very important trade bloc agreement as the UK is the first member and the first European nation to join this bloc. This particular bloc was created in 2018, and the member comprises of Canada, Japan, Australia, New Zealand, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore and Vietnam. Okay. Now it will help in developing a trade or business or trade settlement or business or trade deals in the Pacific countries. Okay. So this is an important article. Moving further toward our next important article, Iraqi Prime Minister in Damascus in first trip since the Syrian war. इतना याद रखना, बाकी कुछ खास important नहीं है. Now we will move on toward our sports section, and here there is a very big news which is coming. Carlos Alcaraz, he defeated Novak Djokovic in his first Wimbledon title on Sunday in the 24th Grand Slam round. Okay, so just remember this, that who is the winner and he defeated who. Okay, this is the important point. So this is all for today. I hope you like this session. If you like this session, then definitely do like and subscribe to our channel and spread it with your friends so that they can also enjoy the benefit of this free initiative. Thank you everyone. Thank you for attending this lecture.